Hello and namaste. Welcome back to my YouTube channel. Have you ever wondered how many times you should wash your brushes, or why your foundation looks so cakey, or what soap you should use to wash your brushes, or what kind of brushes you need in the starting, or what you should invest in? If you ever wondered these questions, this video is for you. Today's video is all about me sharing the basic makeup brushes knowledge for you to as a beginner, and how to clean your brushes properly, and a lot of similar questions regarding this. So let's start. Okay, so first, here are my brushes, all the brushes that I have. And let's first, I think I am going to give you the basic brush knowledge which you need. There are two types of brushes, no, actually three types of brushes: natural hair brushes, synthetic brushes, and जो mix combined आते हैं. So basically you just need two kind of brushes. Natural brushes are basically used for जब आप पाउडर्स यूज़ करते हो, लाइक ब्लश, कॉन्टोर, वैसे पाउडर सेटिंग करना है, उसके लिए नेचुरल हेयर ब्रश आर बेस्ट suited. And if you want to use brushes for your foundation, for cream or liquid purpose, so you should use synthetic brushes. So basically these are the usage of natural hair brushes and synthetic hair brushes. Now there is a question why you should clean your brushes often, or why you should clean your brushes regularly. So first of all, if you ever wondered आपको acne क्यों हो रहा है, या आपका acne ठीक क्यों नहीं हो रहा है, if you are using your makeup brushes. And मेकअप ब्रशेस होल्ड बैक्टीरिया, जो भी आपका प्रीवियस आपने प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, या डर्ट भी जमा हो जाती है, उसको कंसिस्टेंटली जमा होता रहता है उसके अंदर, आप उसको वॉश ही नहीं करते, आप क्लीन ही नहीं करते हो, तो इट कॉजेज़ ब्रेकआउट्स, इट कॉजेज़ एक्ने ऑल्सो. अगर आप पुराने ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हो, लाइक जो आपने पहले कलर्स यूज़ किए होते हैं, सपोज आई शेडो जो आपने यूज़ की होती है, it mixes old colors with the new colors, so you get different eye color or blush color, anything, a foundation color. So you need to clean them to not get the previous color into your next makeup. If you're not clean your brush properly, or you're not clean your brush at all, so it can make foundation to look very cakey and patchy. So you should clean your brushes, and you should clean your brushes at least once in a week, like every other week or every 2 weeks में you should clean your brushes to avoid having any infection or acne, foundation cakey or patchy ना लगे. So this is all you need to know about why you should clean your brushes. So I'm going to tell you like what brushes you need exactly. Like आपको इतने you don't need 30-40 brushes for your makeup to look flawless or anything, or to look the best. You just need the basic important brushes जो आपकी वैनिटी में होनी चाहिए हैं. So let me show you. First I'll go with the face brushes जो आपको needed रहते हैं. First is this brush, standing brushes and stiff brush होता है. This is basically used for your blending foundation, blending your foundation or your concealer or anything. This is used for the foundation blending. And you should also see कि आपका ब्रश जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, सॉफ्ट हो. इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड और चुभने वाला, क्योंकि फिर इससे भी आपकी स्किन इरिटेट होगी एंड एक्ने हो सकते हैं. सो टू अवॉइड दैट, यूज़ हाई लाइक गुड क्वालिटी ब्रशेस एंड सॉफ्ट ब्रशेस. ब्लश ब्रश एक्चुअली ऐसे होते हैं लाइक फ्लफ़ी एंड राउंडिश. सो ब्लश ब्रश शुड बी लाइक दिस. आपको ब्लश ब्रश की भी नीड है. आप ब्लश ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, कॉन्टोर ब्रश जो एंगल्ड ब्रश होते हैं, लाइक इट्स गोइंग लाइक दैट. सो एंगल्ड ब्रश, तो इट्स बेस्ट फॉर कॉन्टोरिंग. लाइक दिस इज़ यूज्ड फॉर कॉन्टोरिंग, एंड ये ब्रश भी आपकी वैनिटी में होना चाहिए. ब्लेंडिंग ब्रशेज आर टू काइंड्स ऑफ ब्रशेज. एक ऐसा भी होता है जो आगे से ऐसे बेंडेड होता है, लाइक ऐसा होता है, इट्स गोइंग अपवर्ड्स लाइक दैट. तो ये ब्लेंडिंग के ही काम आता है. इट्स ईजियर टू ब्लेंड विद दिस ब्रश. एक्चुअली आप ऐसा यूज़ कर सकते हो. दिस ब्रश इज़ बेसिकली यूज फॉर योर फेस ब्लेंडिंग, अगर आपको फेस का फाउंडेशन ब्लेंड करना है. एंड दिस ब्रश कैन बी यूज फॉर योर नेक, ऑल योर यहाँ से लेकर जो भी नेक का आपका फाउंडेशन ब्लेंड करना है उसके लिए
ये यूज़ होता है। और आप या तो एक ब्रश भी ले सकते हो ब्लेंडिंग ब्रश में, एनी वन ऑफ इट, या फिर आप दोनों भी रख सकते हो। फॉर अगर आपको सेपरेट रखना है अपना नेक का और फेस का तो आप अलग भी रख सकते हो, नहीं तो सिंगल भी कैन वर्क। एंड फॉर हाईलाइटर इट्स अ लिटिल लाइक छोटू ब्रश होता है, थोड़ा फ्लफ़ी, तो इससे इजीली हाईलाइटर ऐसे लग सकता है, लाइक ऐसा। सो दिस इज़ फॉर हाईलाइटर। एंड हाईलाइटर के लिए एक और ब्रश भी आता है विच आई डोंट हैव राइट नाउ। इट्स दिस ब्रश ऑल्सो यूज फॉर हाईलाइटिंग पर्पज। सो आप ऐसा भी ब्रश ले सकते हो या ऐसा छोटू फ्लफ़ी ब्रश भी ले सकते हो टू यूज़ योर हाईलाइटर। नेक्स्ट वी विल कम फॉर द आई मेकअप ब्रशेज विच आर यू डोंट नीड सो मच। फर्स्ट इज़ स्पूली इज़ वेरी नीडेड। जब आपको अपने आईब्रोज को कॉम करना हो तो स्पूली इज़ नीडेड। एंड दिस काइंड ऑफ एंगल्ड ब्रश जो थोड़ा छोटे में फॉर फिलिंग योर आईब्राउज। सो एंगल्ड ब्रश मैंने ये इट्स कम्बाइंड, सो आई हैव स्पूली एंड दिस इन वन। आप ऐसा 2 in 1 भी ले सकते हो और इधर आप अलग सेपरेटली भी ले सकते हो, स्पूली अलग एंड दिस एंगल ब्रश अलग। नेक्स्ट यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ अ फ्लफ़ी छोटा ब्रश टू ब्लेंड योर अंडर आइज, फुल फॉर ब्लेंडिंग योर कंसीलर फॉर अंडर आइज। लाइक आप जब कंसीलर ब्लेंड कर रहे हो तो इवन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। सो फॉर कंसीलिंग के लिए, ब्लेंड करने के लिए ऐसा ब्रश, छोटा स्टैंडिंग ब्रश, लाइक अ स्ट्रेट एंगल्ड ब्रश। नोज कॉन्टोर इन एंगल्ड ब्रश ऐसा जा रहा है, इट्स छोटा। सो अगेन फॉर योर नोज। फॉर योर आईज you just need basically these 5 eye makeup brushes. Fluffy rounded brush. This is for blending your transition color जो आप यहाँ पर देते हो over the crease of like over the outer part of your eye, like outer crease पे जो यहाँ पर आप देते हो transition shade. This is used for that. Again a rounded brush but उससे थोड़ा छोटा है ये ब्रश, तो आपका ये काम करता है अगर आपको अपनी इनर ये दिस एरिया को ब्लेंड करना है। लाइक आपने फर्स्ट कलर फ्लफ़ी ब्रश से दिया, देन सेकंड कलर के लिए दिस यू कैन यूज़ फॉर योर दिस एंड लाइक द नेक्स्ट कलर टू हैव दिस काइंड ऑफ अ ब्रश अगेन फॉर द सेकंड कलर, सेकंड शेड, दिस कैन बी यूज्ड। यू शुड ऑल्सो हैव अ छोटू राउंडेड ब्रश टू इन्हांस योर आई। लाइक अगर आपको यहाँ से डार्कर शेड चाहिए सिर्फ यहाँ पर टू मेक एक्चुअली द स्मोकी इफेक्ट लुक, सिर्फ आउटर कॉर्नर को आपको अगर डार्क करना है तो उसके लिए छोटा ब्रश होना चाहिए आपके पास। सो टू ब्लेंड ओवर हियर और ओवर योर इनर कॉर्नर। नेक्स्ट दिस वन स्टैंडिंग ब्रश, छोटा फ्लैट ब्रश। दिस इज़ एक्चुअली फॉर योर ग्लिटर प्लेसमेंट। अगर आपको ग्लिटर्स लगाने हैं तो ग्लिटर को ऐसे यहाँ पर लेकर ऐसे टू press the glitters or the shimmers, so you need a flat brush for that. And last brush for eye makeup is this one. It's a छोटा, basically for your under eye. Like जब आप अंडर आई पे यहाँ पर कलर देते हो तो उसके लिए अच्छे से ब्लेंड करने के लिए you need this kind of a brush. The basic makeup brushes आपको रखने चाहिए अपनी वैनिटी में, इससे ज़्यादा मतलब मेरे पास जैसे अभी इनफ सफिशेंट ब्रशेज हैं। आई हैव 31 ब्रशेज, बट मैं यूज़ सिर्फ मेरे बेसिकली वही सब होते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। लाइक द ओनली 10-15 ब्रशेज आर बेसिकली यूज्ड मोर। बाकी तो होते हैं कि आप यूज़ करना चाहो कर लो, नहीं तो नहीं करो। नाउ लेट्स क्लीन द ब्रशेज। ब्रश क्लीन करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। वन इज़ अ सोप ऑप्शन जो यू कैन यूज़, जो सोप आते हैं इसके लिए, लाइक दीज काइंड ऑफ सोप्स यू कैन यूज़। आई यूज़, मैं बताती हूँ। I use this. It's a cleaning solution. It's a Krylon professional makeup brush cleaner. So I use this one, liquidy one, and इसको use करना it's not tough. It's easier, but you had to clean it in sufficient time क्योंकि ये evaporate हो जाता है, it just go away. So आपको इससे like आप बिल्कुल आराम से नहीं clean कर सकते हो. You had to have a speed. एंड ऑल्सो ये थोड़ा सा आपके नोज़ में एंड आइज़ में लग सकता है इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव नोज़ एंड आई। सो आई डू हैव, बट आई स्टिल यूज़ इट। यू कैन ट्राई इट दिस वन, इट्स गुड। एंड हाउ आई यूज़ इट आई विल शो यू राइट नाउ। अ बोल उसके अंदर हम पानी डालेंगे एंड इस पानी के अंदर हम जो ब्रश क्लीनर का मिक्सचर लाइक द सोल्यूशन है वो ऐड करेंगे थोड़ा सा।
then mix it up and then we'll clean the brushes. Let's get into it. I've just used 1.5 का ढक्कन, जो इसका ढक्कन है उतना मैंने 1.5 ढक्कन डाला है इसमें पानी के अंदर, एंड दैट्स इट. एक ब्रश को इसमें डिप करना है, मिक्स करना है, एंड देन टेकिंग अ ओल्ड क्लॉथ इसके अंदर रब कर देना, एंड दैट्स इट. इट विल बी क्लीन्ड. एंड ऑल्सो एवरी टाइम यू क्लीन योर ब्रशेज और यू वेट योर ब्रशेज, हमेशा अपने ब्रशेज को ऐसा रखो व्हेन इट्स गीला. डोंट कीप इट लाइक दैट, क्योंकि इसका जो अंदर का पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा एंड देन इट विल रूइन द ब्रश. सो ऑलवेज कीप योर ब्रशेज लाइक दैट व्हेन इट्स वेट. एयर ड्राई होने दो, कुछ ऐसा हेयर ड्रायर या कुछ भी यूज़ करने की नीड नहीं है. अदरवाइज़ ब्रश को सुखाने के लिए भी एक चीज़ आती है, अगर आपको उसमें पैसा खर्च करना है तो. अदरवाइज़ एयर ड्राई भी हो जाते हैं बहुत जल्दी. आप इसको आप सनलाइट के पास रख सकते हो थोड़ी सी देर के लिए, नॉट डायरेक्ट सनलाइट बट जहाँ पर धूप आ रही है वहाँ पर रख सकते हो, तो ये क्लीन हो जाएंगे, सूख जाएंगे. See, I keep it ulta, like in a box. I'm keeping it like that. When it's cleaning, so इसका मेकअप सारा कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र हो जा रहा है. And even the water has also got the color of the powders and creams and everything. So this is how you are going to clean your brushes. अगर आपको कोई solution यूज़ करना है और अगर आपको कुछ soap यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और क्लीनिंग का मेथड यही रहता है. I've also ordered one brush cleaner जो ऐसा होता है, लाइक उस पर मैं क्या कर सकती हूँ ना, इसमें डिप करके मैं उसमें ब्रश को साफ़ कर सकती हूँ, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा. विद एवरी ब्रिसल एंड एवरीथिंग कैन गेट क्लीन वेरी इजीली इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लॉथ. सो या, सो माई ऑल ब्रशेज आर क्लीन्ड एंड आई हैव केप्ट देम लाइक दैट. अब ये अपने आप सूख जाएंगे थोड़ी सी देर में. दिस इज़ हाउ आई क्लीन माई ब्रशेज. एंड मतलब थोड़ा सा आपको बता भी दिया गया, अगर आपको कन्फ्यूजन होती होगी कैसे क्लीन करते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू शुड क्लीन योर ब्रशेज एंड आई क्लीन माई ब्रशेज. एक्चुअली मैं पहले बहुत लेट करती थी. आई यूज़ टू क्लीन माई ब्रशेज आफ्टर 3-4 months ऑफ यूजिंग इट, एंड बट नाउ आई क्लीन दैम आफ्टर every 7-10 days मैं कर लेती हूँ क्लीन. इफ़ आई यूज़ दैम रेगुलरली, इवन इफ़ आई डोंट यूज़ दैम, यू शुड क्लीन दैम बिकॉज डर्ट तो जमा हो ही जाती है ब्रशेज़ पे, ऐसे अगर सेपरेट भी पड़े हैं स्टिल. So yeah, every 7-10 days you should clean your brushes to keep your skin healthy and to not cause any breakouts or acne. So now I'm going to go for common mistakes to avoid. So आपको मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है. सोक योर ब्रशेज़ इन वाटर, लाइक कि आप डुबो के रख दो एंड भूल जाओ एंड देन बाद में निकालो. सोक नहीं करना होता है, बस उसी टाइम आपको क्लीन करके कपड़े से साफ़ कर दो, लाइक कपड़े से साफ़ कर दो एंड दैट्स इट. डो नॉट सोक योर ब्रशेज़ इन वाटर. एंड अगर आप बहुत गर्म पानी यूज़ कर रहे हो, डोंट यूज़ इट, जस्ट यूज़ नॉर्मल जो वाटर होता है, टैप वाटर या RO का वाटर, जो भी आप नॉर्मल वाटर यूज़ करो. डो नॉट यूज़ हॉट वाटर टू क्लीन योर ब्रशेज़. पूरी तरह से साफ़ ना करना, लाइक नॉट रिंसिंग फुल्ली, कि आप उसको अच्छे से साफ़ ही नहीं कर रहे हो, बस टिप टिप किया एंड साफ़ कर दिया एंड डन. डो नॉट डू दैट, नॉट डू दैट. प्रॉपरली साफ़ करो. मैंने आपको बता ही दिया कि उसको सीधा नहीं रखना होता है, उल्टा ही रखना होता है आफ्टर क्लीनिंग. लाइक ऐसे नहीं रखना है जब वो गीला है, हमेशा उसको ऐसे रखो सो दैट वो वाटर नीचे ही जाए, इसके अंदर ना जाए ब्रश के अंदर. अगेन आई हैव टोल्ड यू वेटिंग मंथ्स टू क्लीन दैम, कि आप महीनों बाद उसको वॉश कर रहे हो या क्लीन कर रहे हो. आई नो इट्स काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ बोरिंग टास्क टू डू, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट टू डू, सो कर लो. And few final tips from me for every beginner who is like into makeup and want to do makeup. And don't go for a lot of brushes at once. Just invest in good quality brushes. चाहे थोड़े लो पर good quality के लो, वो ही best है. And again, clean them regularly to make them last longer. अगर आप उसको रेगुलरली वॉश करते रहोगे एवरी अदर 1 or 2 weeks में, तो उनकी जो एक लाइफ होती है ब्रशेज़ की, वो भी ज़्यादा रहती है. अगर आप उसको
क्लीन ही नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो उसकी जो थोड़ी लाइफ है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं ब्रशेज़, उनके मेकअप लग लग के वो ख़राब हो ही जाएंगे एट द एंड। सो उसको क्लीन करते रहो तो थोड़ी सी उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। एंड इफ़ योर ब्रशेज़ आर स्टार्टिंग लाइक झड़ना शुरू हो गए हैं, आपके ब्रशेज़ के जो हेयर हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ साइन कि आप उनको रिप्लेस कर दो, उनको फेंक दो एंड नए ब्रशेज़ ले लो। डो नॉट, अगर आप ब्रशेज़ झड़ ही रहे हैं फिर भी उनको यूज़ करे जा रहे हो तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। तो जस्ट रिप्लेस दैम एंड यूज़ न्यू ब्रशेज़ एंड अगेन गुड क्वालिटी ब्रशेज़ में इन्वेस्ट करो। दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा इस वीडियो के थ्रू, जो भी बिगिनर्स हैं या इवन जो ऑलरेडी ये इन सब चीज़ों में हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो या, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू like it, and if you like it, please like this video and subscribe to my channel below. And if you have any other recommendations for the video, let me know. I'll make that one for sure. And yeah, this is it. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye.